দেখছেন আমি আজ এসছি আমি কলকাতাতে বাগ সার্কাস মল্লিক বাজার। তো অজয়দার বাড়িতে এসছি আমি দেখাবো আপনাদেরকে, সাথে নিয়ে আসবো। দেখুন আমরা সব কলকাতা থেকে রয়েছি। এখন আমি সকালে বেরিয়েছিলাম, তো আসতে একটু লেট হয়ে গেছে আজকে। প্রচণ্ড রোদের চাপ চলছে এখানে, ঠিক আছে? রোদের চাপ এখানে প্রচণ্ড চলছে। এই জায়গাটার লোকেশন হচ্ছে মল্লিক বাজার, কলকাতা ন্যারো সাইজ হসপিটাল। আবার পেছনে রয়েছে ন্যারো সাইজ হসপিটাল এটা। আর এইদিকে হচ্ছে লোকেশান রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। ধরুন আমি এসেছি আপনাদেরকে সব খাওয়ার জন্য। আজকে আসা রয়েছে, ওর সাথে যোগাযোগ করে যাবো না সাথে বাড়িতে ভিজিট করতে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন নজর সুন্দর। চলুন আসা যাক ওনার দিকে। হাই বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন কিছুক্ষণ আগে যে অ্যাডেটটা করলাম, সেই জন্য আমি আজকে বলছি আপনাদেরকে। দেখুন আমি আসছি, দেখুন আছে সামনে কয়েকটা, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছেন উনি এখন ড্রাইভিং মানে গাড়ি চালাচ্ছে অলরেডি। আসছি আমি ওনার বাড়িতে ভিজিটের জন্য, ঠিক আছে? ওদের বলুন কেমন আছেন বলে, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা চলুন আমি দেখাচ্ছি কিছু লোকের সাথে। এই হচ্ছে চার চাকার মধ্যে আমরা এখন যাচ্ছি। চলুন সরাসরি আসবো ওনার বাড়িতেই, আপনাদেরকে সব করিয়ে দেখাবো, ঠিক আছে? হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সব কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা ভালো আছেন। তো তো কিছুক্ষণ আগে যেগুলো দেখালাম, তো আমি আসার পথে কিছু ভিডিও দেখিয়েছিলাম, শো করেছিলাম যে আমি যখন আসছিলাম অজয়দা ডক্টর ভিতরে আছে, ওনার সাথে আমি কিছু কথা আপনাদেরকে শেয়ার করব, তার যোগাযোগ করাবো। প্রথমে দেখিয়ে দিই এনার পুরো ছাদের পজিশনটা দেখুন। আমরা আছি এই মুহূর্তে হয়তো মনে হয় 5 তলার উপরে, গেটটা বন্ধ করে থাকবে, 5 তলার উপরে আছি, ঠিক আছে? মানে প্রচণ্ড রোদ। আর পজিশনটা একবার দেখে নিন আপনারা, নাজারাটা খুব সুন্দর লাগছে। তো আজকে সত্য কথা বলতে আমি কলকাতায় এসে খুব খুশি আছি। তো এখানে হচ্ছে আমার সেট আপ, দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। এই যে হচ্ছে ফিমেলের, এটা হচ্ছে ফিমেল সেট আপ, আর বাচ্চার সেট আপ আছে দিয়ে একসাথে। ফিমেল আর বাচ্চার সেট আপ রয়েছে এটা, ঠিক আছে? এরপরে নেক্সট দেখাচ্ছি আরও। এখানে রয়েছে নরের সেট আপ, দেখতে পাচ্ছেন এখানে নরের সেট আপ। পায়রা খুব সুন্দর লাইনের পায়রা আছে, প্রত্যেকটা পায়রা মানে লাইনের উপরে প্রায় আছে সব, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। পায়রা জেনারেশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন, খুব নাইস কোয়ালিটি। আর একটা সেট আপ দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। এখানটা একটা সেট আপ রয়েছে, দেখুন এটা হচ্ছে ব্রিডিং সেট আপ, সব জোড়ায় বসানো রয়েছে। দেখুন এখানে একটা আছে, এখানে জোড়া বসানো রয়েছে, উপরে জোড়া, এইখানে জোড়া আছে, ফুলশিরা জোড়া, লাল সবুজ, এখানে হোয়াইট পেয়ার, সব জোড়াই বসানো রয়েছে। ডিপ কোয়ালিটির চোখেরও পায়রা আছে, প্লাস উড়ান। চলুন পায়রার স্টোরি সম্বন্ধে আমি সরাসরি চলে আসবো আপনাদের সামনে ওনাকে নিয়ে। তো চলুন আসা যাক। হ্যাঁ তো বন্ধুরা, তো যতটুকু আপনাদেরকে বললাম বা সেটা কিছুক্ষণ আগে দেখিয়েছি, তো যোগাযোগটা ছিল অনেকটা দিন থেকে যোগাযোগ চলছিল, তো সময়টা সমস্যার জন্য আসতে পারছি না। তো আপনার সামনে আমি আজকে শো হয়েছি, যে মানুষটার কাছে এসেছি, খুব ভালো লাগছে আজকে। আশা করছি আপনাদেরকেও ভালো লাগবে। পায়রাগুলো দেখলে তো ভালো লাগবেই লাগবে, কিন্তু হয়তো অনেকে অজয়দার নাম শুনেছে, অজয়দাকে হয়তো দেখেনি, ঠিক আছে? আমি কিছুক্ষণের জন্য, জাস্ট কিছুক্ষণের জন্য আমি ওনাকে ভিডিও নিয়ে এসেছি, উনি আসতে চায় না, ঠিক আছে?
তো সেই জন্য আমি আপনাদের খুশির জন্য আমি এসেছি। সামথিং কিছুর জন্য শো করেছে, আমার সাথে হাজিরা দিয়েছে, ঠিক আছে। কারণ উনি আসতে চায় না, আমি মানে রিকোয়েস্ট করেছি আপনাদের জন্যই, ঠিক আছে। কারণ অনেকে পায়রা দেখে কিন্তু পায়রাওয়ালাকে সবাই দেখতে পায় না, যে অ্যাকচুয়ালি ব্যক্তিটা কে বা মানুষটা কি, তার পরিচয়টা কি, ঠিক আছে। তো চলুন আমি চলে আসবো অজয়দার দিকে। আচ্ছা বলুন আপনি, যে এই মুহূর্তে আপনার কাছে ভিউয়ারদের জন্য কি মেসেজ থাকবে? সব থেকে আগে তো আমি থ্যাঙ্কস বলবো দাদাকে। দাদা অনেক দূর থেকে এসছে, এত ধূপ আছে, অনেক গরম আছে, তাও এখন আমার লফটে বসে আছে। প্রচন্ড গরম আছে, একটু বৃষ্টি ওয়েদার ছিল, তাও অনেকদিন পরে আসতে পারিনি, আজকে টাইম বার করে এসছে, আমি এসছি। অ্যান্ড যত পায়রা প্রেমী আছে কলকাতায়, সবাদের জন্য একটাই মেসেজ আছে, দাদা শখ করুন, শুধু শখ করুন, লড়াই ঝগড়া করুন না, কারো সাথে ভেদভাব রাখো না, কারো সাথে মানে কিছু উল্টো পুল্টো খেয়াল রাখো না, শুধু এতটুকুই রাখো যে যা শখ আছে না, অনেক অনেক ভালো শখ, এই শখটা করে অনেকগুলো লোকগুলো খুব খুশি পায়। আমি সেটাই বলবো। হ্যাঁ, শখ আছে, শখ সাথে আগেও বলেছি, একবার ভিডিও হয়েছে আমার, আর এখনো বলছি, এখন দাদার রিকোয়েস্টে আমি ক্যামেরাতে এসেছি, যে শখ আছে তার শখ জন্যে নিজের লাইফটাকে খারাপ করো না, শখ শখে শখ মতন করুন। পায়রা নিশ্চয়ই উড়বে। অনেক লোকগুলো বলে যদি 12 ঘন্টা পায়রা ওড়াতে গেলে 24 ঘন্টা লোককে খাটতে হবে, তাহলে 24 ঘন্টা যদি লোক পায়রার উপরে টাইম দিয়ে দেবে, তাহলে কাজকর্ম করবে কি করে, फैमिली के टाइम देवे की करे। स- सब आदमी का लाइफ में ইচ এন্ড এভরিথিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি সেটাই বলবো, আগে ফ্যামিলি আছে, নিজের পার্সোনাল লাইফ আছে, নিজের বেসিক আছে, নিজের কাজকর্ম আছে, তারপরে শখও আছে। এটা শখ হলো। হ্যাঁ, যার এই প্রফেশনে হয়ে গেছে, তার একটা কাজের ব্যবস্থা বলবো, বা কাজের মাধ্যম বলবো, বা তার বিজনেস বলবো। কিন্তু যার এই বিজনেস নেই, আমার এটা রিকোয়েস্ট, এ পায়রা বাজিগুলোকে শুধু শখভাবে করুন, ভালো করে পায়রা ওড়ান। অনেকগুলো ওস্তাদ আছে কলকাতায়, তার সবাইকে থ্যাংক ইউ বলবো। কেন, খুব ভালো ভালো কথা বলে ভিডিওতে, আমি কাউকে দেখিনি কারো পিছনে উল্টো পুল্টো কথা বলতে, কিন্তু অনেক লোক আছে যে অনেকগুলো জিনিসটা বলে, সেটা আমি চাই না। আর যত লোক আছে সবাই প্রেম ভাবে থাকো এক दूसरे को। দেখো, আমার বাংলা খুব ভালো না, তাও যত পারবো কষ্ট করে বলতে পারবো, যতটুকু হয় অতটুকু বলতে আপনি পারবো। হিন্দি বলুন, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক হ্যাঁ। আছে। কারণ আপনি হিন্দু, অবশ্য আপনি যদি হিন্দি কথা বলেন হুম। আমিও খুশি হব, কারণ হিন্দি কথা বলতে আমাকেও খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ। আর অধিকাংশ ভিউয়ার্স হিন্দি तो শুনতেও हाँ, পছন্দ করে। বলুন আপনি, অসুবিধা दादा নেই। मेरे पास जो कबूतर है ना, मोस्ट प्रॉब्ली कबूतर दिल्ली से है। ये नहीं बोलूंगा कि कबूतर कलकत्ता से नहीं है, यहाँ से भी है। मगर मेरे पास कोई बोलता है ना कि मैं फलाना के छत से कबूतर लाया तो कबूतर उड़ाया, तो किसी की छत से कबूतर लाया, उड़ाया, नो डाउट बहुत अच्छा बात है। मैं नहीं लाया किसी की छत से कबूतर, मैंने दिल्ली से कबूतर मंगाया, और नॉर्मली कलकत्ता में बहुत सारे हाट है, वहां से कबूतर खरीद परचेज किए, अच्छी नस्ल के कबूतर परचेज किए। मेरे साथ भी मेरे एक बॉस हैं, वो मेरे पीछे हैं, वो मेरे को समझाते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो हर एक इंसान के पीछे गुरु होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं रहेगा सही गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कबूतर बहुत रॉकेट साइंस है, हर इंसान पाल सकता है, दाना खिला सकता है, पर जब बात उड़ाने का आता है तो उसके पीछे बहुत कुछ कायदा कानून है। तो उसे चलने के लिए आपके ऊपर एक गाइडेंस होना चाहिए, तो अच्छे गुरुओं के गाइडेंस में रहिए, और अच्छे लोगों से संपर्क में रहिए। और जो लोगों को लगता है कि भाई वो लोग ज्यादा नामी गिरामी है, तो उन लोगों को भी धन्यवाद। मगर कबूतरबाजी का जो शौक है ना, वो उसको शौक बना के रखिए। बहुत मोहब्बत का शौक है, मोहब्बत से करिए, जितना खुशी हो खुशी बांटते रहिए।
बाकी मेरे पास जो कबूतर हैं, बहुत लाजवाब तो नहीं बोलूंगा, बाकी जिसको पहचानना आता है वो खुद देख लेगा। और कोई बहुत ज्यादा भाई मैंने ना 50,000 का जोड़ा खरीदा है ना लाख का जोड़ा खरीदा है। हाँ, मगर किसी के पास जाऊंगा तो ये कबूतर लाख रुपए, 50,000 रुपया, 20,000 रुपये से नीचे नहीं देगा। मैंने भी कहीं ना कहीं से मंगाए हैं, कलेक्शन किए हैं। जो कबूतरों का दाम यहाँ पर 50,000, 60,000 है, वो कबूतर मुझे दिल्ली से 12,000, 15,000 में मिल जाते हैं, तो मैं वहीं से मंगा लेता हूँ। और बाकी देखो यार, हर एक बंदे को अपनी अपनी समझ है। और मुझे जो लगता है कलकत्ता में ब्रांड बिकता है, कबूतर नहीं बिकता है। तो महंगा कबूतर खरीदना, जिससे जो खरीद सकता है खरीदो भाई। जिसको नहीं खरीदना है, जो लोगों के पास शौक करने का इच्छा है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, स्पेशली स्टूडेंट या जो लोग काम नहीं करते ज्यादा, बहुत कोई हो सकता है यार, हर किसी के पास जरूरी नहीं है लाखों लाखों रुपया हो। तो जिसको शौक करने का इच्छा है, हमारे पास कुछ कबूतर हैं, कम दाम में हमसे ले जाइए। और जब लेके जाएंगे तो दादा का जो भी पेज है या ये जो वीडियो बनने वाला है, इस पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कबूतर कैसा मिला, जो वीडियो में बोला गया वैसा मिला या नहीं मिला। और मेरी तरफ से एक चीज रहेगा, आप लोग मेरी छत पर आइए, खुशी खुशी आइए, कबूतर लीजिए मत लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आइए, जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं उतना अच्छा व्यवहार बनता है। बस प्यार बांटते रहिए, कबूतरबाजी करते रहिए। बाकी मेरे पास जो कबूतर है, अपनी आंखों से देखिए और खुद डिसाइड करिए कबूतर अच्छा है या खराब। वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, क्या पता मुझे ही आपसे कुछ सीखने को मिल जाए। सीखने का तो कोई वो नहीं है कि भाई मैं नहीं सीखना चाहता। क्या पता कुछ अच्छी चीजें आप लोग भी बता दें, और अच्छे को अच्छा बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी दादा हैं यहाँ पर, सबसे सबसे बड़ा धन्यवाद इनको कि इतना दूर से आए हैं, टाइम निकाल के आए हैं। बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म, हम तो नहीं चढ़ते हैं छत पे गर्म में। और 12 घंटा 14 घंटा कबूतर उड़े उड़े, हम तो नहीं उड़ सकते भैया छत पे, इतना धूप में हमसे तो होगा नहीं। कबूतर उड़ता है बॉस मेरा, नो डाउट, 7 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, और ये लोग इच्छा करता है तो कभी 9, 9.5 घंटा। तो अब ना मैं गोली देता हूँ और ना ही मैं कोई कार्यवाही करता हूँ इनके पीछे। मेरा बॉस बोलता है अभी दाना खिलाओ, बाद में देखा जाएगा। दाना दीजिए अच्छे से, विटामिन दीजिए अच्छा से। दादा का एक क्वेश्चन था मेरे से आने से पहले, दादा आपके लॉफ्ट में वायरस तो नहीं आया अभी? तो दादा ये लॉफ्ट है, एक भी कबूतर दाया बाया नहीं है, सब यहीं पे है। ऊपर वाले का करम है, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा है, भगवान की दुआ है कि दूर दूर तक वायरस नहीं है छत पे। और आप लोगों को भी बोलूंगा, आप लोग की छत पे वायरस नहीं होगा, कोई 2-3 करोड़ रुपए का सामान नहीं लगता है बॉस। 3 चीजें हैं, रख लीजिए, मुझे मेरे बॉस ने सिखाई है, मैं आपको बोल देता हूँ। सिर्फ 3 चीजें खिलाइए और कुछ मत खिलाइए। नंबर 1 बीकासूल, नंबर 2 डॉक्स एसएल, नंबर 3 लीवर 52। हर ऑल्टरनेटिव डे पर 1 लीटर पानी में एक कैप्सूल, 1 लीटर पानी में एक ढक्कन, कबूतर को दाना खाने के बाद दे दीजिए। आज देंगे बीकासूल तो कल कुछ मत दीजिए, परसों दीजिए डॉग्स। जिस दिन डॉग्स देंगे उसके बाद कुछ मत दीजिए, उसके बाद दीजिए विमरा, ये सॉरी, लीवर 52। और भाई उसके बाद कुछ देने का दरकार नहीं, कबूतर को दाना खिलाइए, अच्छे से पानी पिलाइए। आपके सामने कबूतर है, कबूतर A1 कंडीशन में है। कोई डॉक्टर नहीं है मेरे पास, एक बॉस है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं। नॉर्मल चीजें, बेसिक चीजें कोई भी खरीदेगा भाई। हमको लगता है 100-150 रुपए में काम हो जाना है, खरीद के रख लो। बाकी लीवर 52 का डब्बा भी बड़ा वाला आता है, वो लेके रख लो, आराम से महीना कट जाता है। ना दाम ज्यादा है, ना दिमाग ज्यादा खपाता है। पानी में मिलाओ, खिलाओ। कबूतर को ठंडा लग जाए तो बीच बीच में हफ्ता में एक दिन मॉक्स चला दो, बस। ठंडा लगेगा नहीं, बट फिर भी हफ्ता में एक दिन बचता है, संडे मंडे कोई भी दिन स्टार्टिंग में मॉक्स चला दो, हो गया। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ अजय भाई को, ठीक है, ये बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई का, है कि ये बहुत बड़ा काम में बिजी रहता है, ठीक है।
मेरे साथ बात होने के बाद थोड़ा बहुत समय निकल के आया है। इतनी देर तक नहीं रह सकता था वो अभी जो बात कह दिया वो बस खत्म ही समझो, ठीक है। इसके बाद दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमको ही नहीं पता, ठीक है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इनका, ये भाई आज मेरे लिए टाइम समय निकाल कर आया है इधर। ये बहुत काम में बिजी रहता है, ठीक है। आप लोग शायद जान ही चुके हो और देख भी चुके हो, ठीक है। वीडियो में सब कुछ तो डिटेल में नहीं बोल सकते, क्या है कि इसका पर्सनल लाइफ है ना, सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। हम आए हैं कबूतर शौक करने के लिए, तो आप लोगों को सब करवाएंगे, ठीक है। जैसा कबूतर है मैंने भी देखा, बहुत सुंदर ही कबूतर है। यानी कि ये ऐसा नहीं कि आँख नहीं है, उड़ान नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई ने बोला है ज्यादातर नहीं, उससे भी ज्यादा कबूतर ले गया है दिल्ली से ही, ठीक है। यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ मिला जुला के अर्थ से कल दादा यहाँ कबूतर बहुत महंगा है, मतलब इतना महंगा है कि हाट से लिए तो लिए, किसी के छत चला जाऊंगा तो कपड़े खोल लेगा। स्कीम कितना है? दादा स्कीम ही स्कीम है। आपको क्या पता है यार कौन सा कबूतर उड़ता है। और देखिए एक तो बात बोलता हूँ, और मेरा जो बॉस है ना वो A1 आदमी है। मैं उनका नाम बोल देता हूँ आप लोगों को, बहुत कोई जानते होंगे बहुत कोई नहीं जानते होंगे। उनका नाम है परवेज दा, रिपन स्ट्रीट के परवेज दा, जिन्होंने बहुत नामी गिरामी हस्तियों को बहुत दूर तक पहुंचाया है। मैं नाम नहीं लूंगा, शायद उन्होंने भी कभी नाम नहीं लिया, बट मेरा जो बॉस है ना वो A1 क्वालिटी आदमी है। आपको कभी उल्टा पुल्टा चीज नहीं सिखाएगा। और मेरे को कभी नहीं बोला कि आगे कबूतर नहीं उड़ता, गुरु उड़ता है। मेरे को एक ही बात बोलता है कि जितना टाइम है ना बस वो टाइम ठीक से दो। दिन भर छत में बैठने कभी नहीं बोला उसने, कभी नहीं। अब परवेज दा जैसा आदमी मेरे को मिला है, मतलब बस आई एम सो लकी। ही इज अ वेरी जेंटलमैन आदमी एंड जेम ऑफ अ पर्सन। ना 1 रुपए का लालच है उनके मन में, ना ही कि कोई धोखाधड़ी, ना ही कभी किसी से। बहुत एजेड आदमी है, बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत किसी को सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत किसी को नाम जिताया, बहुत किसी को नाम बना के दिया, मगर लोगों ने ना उनका नाम कभी लिया नहीं। जबकि लेना चाहिए। गुरु गुरु होता है बॉस। गुरु की एज नहीं होती है, गुरु का पैसा नहीं होता है। गुरु हमेशा गुरु होता है। गुरु अनपढ़ हो गवार हो, गुरु गुरु है। गुरु पैसे वाला हो, गुरु गुरु है। गुरु भिखारी हो, गुरु गुरु है। तो जिन लोगों के उन्होंने नाम बनाया उन्होंने कभी नाम नहीं लिया, बट बॉस मेरा अभी नाम नहीं है। और कभी ऊपर वाले ने चाहा तो होगा, और नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, शौक है। टूर्नामेंट खेलेंगे। और भी कलकत्ता में बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं, अगर कभी किसी को मेरी बातें अच्छी लगे तो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। कोशिश कीजिएगा, आशा कीजिएगा कि मैं कुछ अच्छी चीजें सीख सकूं आप लोगों से। बुराई बांटने के लिए तो दुनिया में बहुत कोई है, कुछ अच्छा बांट सकते हो तो जरूर बांटिएगा। और मेरी वीडियो अगर किसी को खराब लगे या मेरी कोई बात किसी को खराब लगे तो दादा मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आप लोगों से। और अच्छा लगे तो कमेंट्स में भाई के जरूर जनाइएगा कि कुछ अच्छा बोला, या कोई सपोर्ट करना चाहता है तो एकदम बिंदास फोन कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें भी अच्छा लगेगा। सब लोग बहुत खुशी खुशी शौक करते हैं। एक कुछ लोगों के लिए खराब भी लगा है इस बार मेरे को। मैंने सुना है, दो एक वीडियो देखा है, कुछ लोगों के कबूतर चोरी हो गए। तो बॉस जो करता है वो तो पता नहीं क्या ईमान लेकर के बैठा है। बट यार मत करो यार। वो बेचारा बहुत धूप में, सड़ी गर्मी में, बरसात में, ठंड में, वो अपने से ज्यादा कबूतर की हिफाजत करता है बेचारा। उसके बाद यार उसकी मेहनत पे तुम लोग चोरी कर लेते हो, क्या फायदा है। गलत है, नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये बोलने के बाद मेरे कबूतर भी चोरी हो जाए। तो ऐसा बात नहीं। बस ऐसा कोई काम मत करो यार कि किसी को भी तकलीफ हो। देखो यहाँ तो कुछ हो नहीं हो पता नहीं, बट मेरे को जितना पता है कि झेलते यहीं पे हैं। ऊपर जाने के बाद तो किसी को नहीं पता क्या होगा, मगर ऊपर जाने के बाद भी मुंह दिखाई नहीं होगा। तो सबसे यही अनुरोध है भैया, शौक कीजिए, किसी के साथ
गलत काम मत कीजिए, किसी का गलत मत कीजिए। और हो सके तो अगर कोई अच्छा कुछ करके रखा है ना, तो उससे भी सीखिए कि उस बेचारे ने कैसे अच्छा किया है। कि उसने तो कोई इंजेक्शन ठोक के सबको अच्छा नहीं कर दिया, या उसके पास तो कोई जादू का छड़ी नहीं है कि भाई उसने घुमाया और कबूतर अच्छा हो गया। और बहुत मेहनत करके कबूतर खरीद के लाया बेचारा, दाम दाम से। उसके अंडे किए, बच्चे किए, उसके पीछे खिलाना रे पिलाना रे, बहुत मेहनत है। तो ऐसा कोई काम मत करिए यार कि किसी का भी शौक नष्ट हो जाए, वो बेचारे का मन टूट जाए। क्योंकि जब कोई इंसान रोता है ना, तो ऊपर वाला डायरेक्ट सुनता है। हाँ, तो आंसू की बहुत कदर है। तो आंसुओं की कदर कीजिए, आप भी किसी का शौक मत खराब करिए बस। और कभी अगर किसी के मन में आप किसी का खराब करने का आता भी है, तो भाई मेरी बात सुन करके थम जाइए। क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, कोई देखे नहीं देखे। किसी ने कहा है चोरों का ईमान नहीं होता, बट इतना जानता हूँ कि भगवानों के हाथ आगे तो हाथ वो भी फैलाते हैं। सही बात। तो उनसे डरिए। इंसान की कोई औकात नहीं है आपको डराने की, बट उनसे डरिए। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी शौक कीजिए, और मेरे बॉस के लिए भी दुआ कीजिए। परवेज दा को बहुत कोई जानते होंगे आप लोग, तो तो अच्छा लगे दोस्तों तो याद करिएगा। तो दोस्तों आप लोगों से बात करना तो चाहता हूँ। आई एम सो वेरी लकी जो आज ही करके पता पाए, और इतना सारा बात मतलब जो बोला है ना, सब कुछ रियलिटी में जरा सोच के देखे हो जहाँ ये रियलिटी में ऐसा होता है कि नहीं। किसी के शौक को इतना ज्यादा दूर ले जाने की तो जरूरत नहीं है, क्या कि वो चोरी करता है, किसी ने डाका डालता है, ऐसा करना नहीं चाहिए। इनका बात से मैं पूरा सहमत हूँ। आई एम सो वेरी लकी। और जो बोलते हैं इनका बॉस, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये इसके वजह भाई की ज्यादा जैसे स्टूडेंट मिला। ठीक है, आई एम सो वेरी लकी उनके पास आए। तो चलो। अच्छा, एक बात और बोलूंगा भैया, वो भाई के लिए। आप लोग बहुत कोई इनको छत पे बुलाते हैं, तो यार ये लोग ना खटते हैं, तो इनको क्या मिलता है मालूम है? मतलब मेरे को लगता है नॉट इवन अ पेनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्योंकि जो आप देते हैं ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। शायद 2 वक्त का घर में खाना भी नहीं पकता है। तो इन लोगों का शौक है यार। ये लोग अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, तो इनका चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और बस इनके थ्रू अपना बिजनेस मत कीजिए। अगर इनको बुला रहे हैं ना, तो इनके थ्रू कबूतर बेचिए, तो ऐसे दामों में बेचिए कि खरीदने वाला ना 8 आदमी को बोल करके इनको भी प्यार दे, और आप लोगों को भी प्यार दे। अभी मैंने देखा है यार, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सोशल मीडिया से ना लोगों ने आग लगा रखा है भैया कलकत्ता में। यार बुलाते हैं इनको यार, अपनी छत का वीडियो बनाते हो ठीक है, अरे बहुत शौक ही बांटना है तो कम दाम में बांटो यार। उनसे वीडियो बनाओगे, छत पे बुला करके 20,000 25,000 कबूतर बिक्री करोगे, और जो कबूतरों को हाट में मेरे को लगता है 500 1000 रुपए में कोई नहीं पूछता है। तो ऐसा मत करो बॉस। मुझे पता है मेरी बातें बहुत किसी को अच्छी लगेंगी, बहुत किसी को खराब लगेगी। तो जिनको खराब लगेंगी वो चेंज हो जाएं, और जिनको अच्छी लगेंगी वो सावधान हो जाएं बस। तो इनको प्यार दीजिए यार, बहुत मेहनत करते हैं। ये हैं मेरे और भी भाई हैं जो यूट्यूब बना रहे हैं आजकल कलकत्ता में। बस हमें खुश होना चाहिए कि हमारा कैलकाटा एडवांस हो गया है, लोग पढ़ लिख के आगे हो गए हैं। तो यार उनकी कदर कीजिए, बिजनेस मत कीजिए। कबूतर ज्यादा हो जाता है, छत से बेचते हैं ठीक है, हम भी समझते हैं। हाट में बहुत कोई जाना नहीं चाहता है। मेरे जैसा आदमी हाट में जाके कबूतर नहीं बेच सकता है, खरीद भले ही लेगा। मगर इनको बुला करके छत से वीडियो बनाया, और यार बाद में फोन करके गाली खाते हैं यार, अरे यार वो तो बहुत दाम बोलता है। कमेंट पढ़ना, कभी कभी लिख देता है यार कोई कोई कि यार ये सिर्फ कबूतर दिखाता है, ऐसा वहां जाने से ऐसा बोलता है। ऐसा मत करो यार, उन बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, सपोर्ट करो यार। सब भाई लोगों से बोलूंगा, मेरे बहुत बड़े बड़े उस्ताद लोग भी हैं कलकत्ता में, उनसे ही बोलूंगा सर आप लोग भी सिखाइए सबको कि महंगा रुपया है, पैसा कमाइए, कबूतर बेच के नहीं। अच्छा काम करें, बिजनेस करते हैं आप लोग यार, कबूतर बेचिए छत से, सस्ता बेचिए। मुझे भी पता है बहुत कोई कहेगा यार ज्ञान दे रहा है, बस मेरे पास आ जाइए, मैं सस्ते सस्ते में दे दूंगा। उड़ाइए, शौक कीजिए। 4 घंटा 5 घंटा दाने पे उड़ जाएगा, उसके बाद बॉस आपके अंदर जितना साइंस है आप उड़ा लीजिए। अब कबूतर को गोली फोली मत खिलाया करिए यार,
बेमुंह का जानवर है, बोल नहीं पाएगा कि गोली खिला रहे हो टाल हो जाता है, मर जाता है। सिर्फ जीतने की खुशी में कुछ भी करते हो। मत जीतो बॉस। शौक करते हो ना यार, इतना मेहनत से पालते हो बच्चों की तरह, गोली फोली मत खिलाइए भाई। जीतने के लिए कुछ भी करने से अच्छा है बॉस मत करिए, शौक कर रही है, सिर्फ शौक कीजिए। ये शौक की चीज है यार, ये तो टूर्नामेंट वगैरह अब हो गए, कुछ अच्छा शौक करिए। कहीं बाहर जाइए, देखिए रेस करते हैं वो लोग, तो कोई कैप्सूल नहीं खिलाते, विटामिन पे कबूतर की रेस कराते हैं वो। यूट्यूब है, बड़े बड़े उस्ताद हैं, अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, उनसे सीखिए। खाली गोली वोली के चक्कर में मत पड़िए, कबूतर सारे जो खरीद के लाए ना बर्बाद हो जाने। बस इतना ही बोलूंगा भाई, मेरी बातें मेरे को पता है बहुत किसी को खराब लगने वाली है, क्योंकि मैं बहुत सीधा सीधा सटीक सटीक बोलना पसंद करता हूँ। ये बेकार की चीजें मेरे को नहीं आती हैं कि भैया भाई चला जाएगा, वो वीडियो पे कोई फोन करेगा, हाँ वो कबूतर है मेरे पास 25,000 का ले जाओ, नहीं है भैया मेरे पास 25,000 का कबूतर कोई। हाँ किसी की छत से खरीदने जाऊंगा तो 20,000 के नीचे देगा नहीं। और मैंने तो 7-8 हज़ार में मंगाया दिल्ली से। दिखाऊंगा जरूर कबूतर कैसे है। और जिन भाइयों को नया शौक है शायद उनको नहीं पता है कैसे क्या कबूतर होते हैं। तो भाई कबूतर उड़ता है, कबूतर की नस्ल उड़ती है, कबूतर की आंखें नहीं उड़ती हैं, कबूतर के पंजे नहीं उड़ते हैं, कबूतर की चोंच नहीं उड़ती है। भाई मैंने अपनी जिंदगी में 100 रुपए का कबूतर भी पाला है। और मेरे पास ना एक 2-3 कबूतर हैं जो 200-250 में भी खरीदे हुए हैं। और अगर उड़ा दूंगा तो 6 घंटे से नीचे उतरते नहीं है। और किसी भाई को अगर दिल करे मेरे से कि मैं ओवर द कैमरा झूठ बोल रहा हूँ, तो भैया फील फ्री टू, हाथ जोड़ के वेलकम है, आ जाइए। दाना खिलाते हैं भैया, यहाँ दाना रखा है मेरे बगल में, दाना दिखाऊंगा, कबूतर को पानी पिलाऊंगा वो भी उतरने के बाद। और आपके सामने उड़ाऊंगा, 4 से 6 घंटे पहले अगर कबूतर उतर गया कबूतर फ्री। बस। चलो इतना बड़ा दिल की बात बोल दिया, शायद कोई बोलता नहीं आता, ठीक है। तो चलो बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई का, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया मेरा को, ठीक है। और ज्यादा वीडियो नहीं बढ़ाऊंगा, वीडियो हाँ लंबा हो जा रहा है, ठीक है। कहेंगे देखो बोलने से ना बहुत कुछ निकलता है, बहुत कुछ निकलता है। कितना सारा शब्द सामने आएगा ना, ये बोल ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते आप लोग, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत अरे भाई यार, आदमी लोग क्या करता है मालूम है, बाहर से ये विटामिन ले आओ, वो विटामिन ले आओ। अरे भाई अपने घर के बच्चों को खिलाओ खाना यार। कबूतर है भाई, दाना गेहूं पे चलता है, ये लोग गेहूं बाजरे पे उड़ लेगा। जिसके पास है भैया कुछ भी कर सकता है, जिनके पास नहीं है बेवकूफी में मत पड़िए। एक कैप्सूल आता है बीकासुल, विटामिन है उसके अंदर, कैल्शियम है उसके अंदर, वो खिलाइए यार, वो पिलाइए पानी। अच्छा पानी दीजिए, अच्छा दाना दीजिए, कुछ देने का दरकार नहीं। और हाँ जिनके पास है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि खराब चीजें बेच रहे हैं भैया, मगर बहुत सारी चीजें अच्छी हैं और बहुत सारी चीजें खराब भी हैं। देखिए हर कोई जानता है कि दवाइयां जब इंसान के लिए अच्छी नहीं है तो कबूतर है, तो उतनी खिलाइए जितनी बर्दाश्त कर सके, उससे ज्यादा मत खिलाइए भाई। बस। थैंक यू सो मच, ज्यादा बहुत बोला मैंने, अगेन बोलूंगा। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। इन भाई के साथ एक भाई और आए हैं, आओ आओ, वो सामने आओ ना, सामने आओ। हैं? वो भी अच्छा है, बेचारा बहुत दूर से आया यार, धूप में खड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये दोनों के लिए प्यार बढ़ाइए, दोनों का चैनल जितने से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, अच्छे कमेंट दीजिए। और बहुत जैसे मैंने बोला ना, खुल के आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, दादा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। हो सकता है क्या पता इसके भरोसे या इसकी बदौलत वो 4 आदमी कुछ अच्छा चीज सीख ले। और जुड़िए, ये शौक ना बहुत नवाबी शौक है, बहुत इससे लोग जुड़ते हैं। आप सोचिए, आप जिनको जानते नहीं हो उनसे, उनकी छतों पे चले जाते हैं आप, उनसे आपका रिलेशन बन जाता है सिर्फ और सिर्फ कबूतर की वजह से। तो कितना बड़ा शौक है जो आदमी को आदमी से जोड़ रहा है। कभी सुना है कि भैया तेरी छत पे आऊंगा तेरे को मारूंगा? नहीं। छत पे आने के बाद चाय पी रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं, तो यार ये दोस्ती बढ़ाने का शौक है। दोस्ती बढ़ाइए, आप लोग भी खुल के कमेंट कीजिए, मुझे भी बताइए दादा मेरी कोई बात खराब लगी हो ना तो मैं भी चेंज करूंगा अपने आप को। बस। ठीक है, चलो दोस्तों, बात है कबूतर के सामने, कबूतर दिखाता हूँ, चलो। तो ভিউয়ার্স দেখছেন প্রথমে একটি জোড়া
তো যেটা যেমন বলেছিল সেইভাবেই আছে। তো টোটাল পায়রা প্রায় 19-20 ওনার সব চেন্নাই থেকে আনানো। আচ্ছা, এগুলো চেন্নাই থেকে আনানো? দিল্লি থেকে সরি, চেন্নাই না, দিল্লি থেকে আনানো। এগুলো দিল্লি থেকেই আনানো, তাই তো? ঠিক আছে, তো চলুন, উনি রোদের জন্য ওনার খুব প্রবলেম হচ্ছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ওই জন্য আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে জোড়া, এটা হচ্ছে মাদিন, আর এটা হচ্ছে নর। তো আপনাদেরকে আমি একটা করে দেখিয়ে দিই আগে। এই হচ্ছে মাদিন, দেখো। মাদির চোখের কোয়ালিটিটা দেখুন একবার। আরেকদিকে চোখ দেখিয়ে দিই। সে আইস কোয়ালিটি, আর হেডলাইন দেখুন, মানে ঠোঁটটা বহুত সুন্দর। মেচুয়া কালারে। নটটা দেখাচ্ছে একবার। দেখুন বন্ধুরা, আর নটটাকে একটু ভালো করে দেখুন আগে, যে পায়রাটা কি পায়রা। তো রিংটা তো ছোট্ট হয়ে যাচ্ছে, মনিটা। এ হচ্ছে নর, দেখুন একবার, এদিকে চোখ। এখন পরে এইভাবে দেওয়া আছে। তো যেটা মানে কিছু পায়রাকে আজকে উড়িয়ে দেখানো হবে মনে হয়। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, তো এটা কিছু পায়রা উড়িয়ে দেখাবে, আমি আপনাদেরকে সেটা ভিডিও চলাকালীন দেখিয়ে দেবো। তো এবার তো চলুন, এরপরে নেক্সট পায়রা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আচ্ছা ভিউয়ার্স, দেখুন বন্ধুরা, এটা হচ্ছে সেকেন্ড পেয়ার। তো এখন যেই পায়রাগুলো দেখাচ্ছি সব ব্রিডিং পায়রা। এদিকেরটা নর আছে, আর এদিকেরটা মাদি আছে। তো চলুন, আমি একটা করে শুরু করে দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। আগে নর মাদি থেকে শুরু করছি, তারপর নর দেখাচ্ছি। দেখুন মাদি, দেখুন পুরো শর্ট বডির পায়রা। এই হচ্ছে মাদি। তো প্রচন্ড রোদের জন্য আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে বন্ধুরা, তো একটু মেনটেন করে নেবেন। মাদি ভালো কাট আছে, জোড়ায় বসানো আছে, শর্ট বডি, গন্ধ ধুম, ফেস বিউটি। নটটা দেখাচ্ছে একবার। তো ভিউয়ার্স দেখুন, নর, এটা হচ্ছে নর পায়রাটা। দেখুন চোখ দেখুন বন্ধুরা। আর একদিকে চোখটা দেখায়। তো সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি একবার আপনাদেরকে। তো বলুন, এরপরে নেক্সট পায়রা দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স দেখুন, তো একটা পায়রা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো খুব পছন্দ নেই পায়রা হবে আপনাদের জন্য, আমি বুঝতেই পারছি যে দেখবেন আগে। তো অনেকে বন্ধুরা বলে যে গ্রিন আইস, গ্রিন আইস, অ্যাকচুয়ালি গ্রিন আইস কাকে বলে সেটা আপনাদের দেখাবো, যে গ্রিন আইসের পরিচয়টা কি। কারণ এখন তো অনেকেই বলে যে চোখ একটু গ্রিন হয়ে যাওয়া মানে গ্রিন আইস পায়রা। তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছেন গ্রিন আইস। এটা হচ্ছে মদ্দা পায়রা, এটা হচ্ছে মাদি পায়রা।
তো দেখুন অরিজিনাল গ্রিন আইস কেমন পায়রা দেখাচ্ছে আপনাদের। ওকে, এই হচ্ছে গ্রিন আইস, দেখুন বন্ধুরা। একটা চোখ দেখাচ্ছি, দেখুন এটা আর একদিকের চোখ। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো একবার এটা নটটা দেখালাম, কারণ পর কাটা আছে, বেরিংয়ে বসানো রয়েছে, ফেস অফ বিউটি। মাদিটা দেখাচ্ছি, কোনটা মাদিটা, এটা না, এই হচ্ছে মাদিটা। তো প্রচন্ড রোদ বাইরে, যে কারণে আমি লফটের ভিতরেই আছি, বেরোতে পারছি না, রোদের খুব চাপ চলছে। এখন রোদের প্রচন্ড চাপ চলছে, চেষ্টা করছি আমি আপনাদের জন্য আরেকটু ভালো করে দেখাবার। রোদ তো, আচ্ছা ভিউয়ার্স দেখুন এইটা মাদিনটা। সেটা দেখি দেখুন। আচ্ছা বন্ধুরা দেখুন, এই একটি জোড়া দেখুন ভালো করে, ঠিক আছে, এটা অজয়দার খুব ফেভারিট পাড়া, মানে পায়রা, জোড়াটা খুব সুন্দর লাগছে। এমন জোড়া খুব সম্ভবত কমই দেখা যায়। তো চলুন, আমি এদিকেরটা নর আর এটা হচ্ছে মাদি, তো আমি নর মাদি থেকে শুরু করছি। এই হচ্ছে মাদি, মাদি কাপ, লেজ পুরো কালো, পর খোলা আছে এখন। এবার নটটা দেখাচ্ছি একবার আপনাদেরকে। সব বিউটি। জোড়াটা একবার ছেড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, তো জোড়াটা একবার দেখে নিন। এই হচ্ছে জোড়া, ফুল অফ কোয়ালিটি যাকে বলা যায়, যে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এখানে বলার কিছুই নেই। মাদি প্লাস নর দুজনেরই পায়ে পর আছে হালকা, একদম ওকে পায়রা। আচ্ছা বন্ধুরা দেখুন, তো নর দেখুন, আমার হাতে দুটোই আছে, যে কারণে আমি দেখাতে পারছি না ভালো করে। তো নরের কোয়ালিটি দেখুন, লাজবাব, পুরো ব্লু টোট। আর এটা মাদি দেখুন, এটা হচ্ছে মাদি। মাদি বডি একদম পুরো, কি বলবো, একদম স্লিম বডি, খুব সুন্দর বডি। ভিডিওতে বলে দাও, হ্যাঁ, অজয়দার একটা বন্ধু দিয়েছে, বলে দিয়েছি অলরেডি।
ঠিক আছে, তো এটা অজয়দার একটা বন্ধু গিফট করা পায়রা, অজয়দাকে গিফট করেছে। খুব সুন্দর পায়রা। তো চলুন নটটাও দেখাচ্ছি। দেখুন নটটা দেখুন বন্ধুরা, নরের হেড শেপ, নরের লাইন দেখুন, কোয়ালিটি দেখুন, পুরো ফুল কোয়ালিটি। তো আজকে হয়তো ভিউয়ার্সদের একটু মানে অসুবিধা হবে, কারণ আজকে ভিডিওটা অনেক লং হয়েছে, কিন্তু কিছু জিনিস আপনাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য এটা হয়েছে আমার। মেনটেন করে নেবেন আজকে একটু। দেখুন, তো আজকে এসে এখানে খুব ভালো লাগছে যে আজকে কোয়ালিটি দেখুন পায়রার। নরের চোঁচ দেখুন, হেড শেপ দেখলে খুশ হয়ে যাবেন। তো চলো ছেড়ে দেখাচ্ছে একবার। এটা হচ্ছে জোড়া, খুব সুন্দর জোড়া। তো চলুন এবারে আর কিছু পায়রা ওইদিকে আছে, সেই পায়রা কিছু কিছু শখ করিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো, তো আপনারা দেখবেন, ঠিক আছে? তো আসুন পায়রা দেখে যে। হ্যাঁ, তো ভিউয়ার্স দেখুন, তো নরের লফটে এই পায়রা কিছু আছে, তো এই নরের লফট থেকে কিছু পায়রা দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে। দাঁড়ান একটু একটু 1 মিনিট, আমি আপনাদেরকে আগে উড়িয়ে দিই, দাঁড়াও দাদা, আগে উড়িয়ে দিই, তারপরে ধরে ধরে উপরে ছাড়তে পারবে। এখন উপরে ছাড়ো। তো দেখুন বন্ধুরা, বাইরেতে প্রচন্ড রোদ, সেই জন্য আমি তো চেষ্টা করছি দেখাবার। দেখে নিন এখানে একটু, এই হচ্ছে নর, পুরো পুরুষে আছে পায়রা এখন। পায়রার বডি লাইন দেখুন, খুব সুন্দর পায়রা। দিল্লি থেকে আনা পায়রা মারা। দেখ, অজয়দা সব দিল্লি থেকে পায়রা আনানো, খুব সুন্দর কলসিরা নর। এটা এটা নর পায়রা। ওখানে যে দুটো আছে সব নর। চলো, হ্যালো বন্ধুরা দেখুন, এটা হচ্ছে একটা কালশিরা নর। জুম করো, জুম করো। এটা হচ্ছে কালশিরা নর, খুব সুন্দর প্যাটার্নের পায়রা। এটা হচ্ছে কালশিরা দেখুন। হ্যাঁ, পুরানো টাল আছে। লেজ পুরো কোনটা এটা? কালো। এই পায়রাটা, এই পায়রা টাল নেই, বলে দেবে এই সব। হ্যাঁ, তো ভিউয়ার্স দেখুন, এই যে মাদি লফটে এসছি, এই লফটের পায়রাগুলো সব বাড়িরই বাচ্চা। তো নরের লফটের পায়রা অনেকগুলো রয়েছে, মাদির লফটের পায়রা অনেকগুলো রয়েছে। এই পায়রাগুলো অলরেডি উড়বে, তো আপনাদেরকে আমি উড়নটা দেখাবো, ঠিক আছে? তো যে পায়রাগুলো ছাড়ছে প্রায় মিনিমাম ধরে নিন আপনারা, হ্যাঁ 20টার উপরে পায়রা উঠবে এখন। তো অজয়দা ছেড়ে দেখাচ্ছে আপনাদেরকে, উড়ানটা দেখুন আপনারা। তো ছাড়ছি পায়রাগুলো, ঠিক আছে? তো চলুন পায়রাগুলো ছেড়ে দেখা যাক। স্টপ করো। হ্যাঁ, তো ভিউয়ার্স দেখুন, তো সব পায়রাগুলো বেরিয়েছে, উড়ছে। দেখুন তো পায়রা উঠছে এদিকে, এইদিকে দেখাও। তো পায়রাগুলো ছেড়ে সব দেখুন পায়রাগুলো আকাশে উড়ছে। দেখাও, ওখানে চারটে এখানে পাঁচটা দেখিয়ে দিচ্ছি। না না, এবার হ্যাঁ ওই এখানে একটা কালো কালো দেখাতে পারোনি, গ্রিন আইজা তোমাকে দেখিয়েছিল। হ্যাঁ ওই মাঝি সেকশন, এই নরের সেকশন আছে, হ্যাঁ ওটা দেখানো হয়নি। তো ভিউয়ার্স দেখুন, একটি মুন্ডি সাদা মুক্সি পায়রা, চোখটা দেখুন। নর পায়রা, এটা নরের লফটে আছে আমি।
এরপরে নেক্সট পায়রা দেখাচ্ছি। আচ্ছা ভিউয়ার্স দেখুন, এই একটা গ্রিন আইস পায়রাটা দেখুন ভালো করে, জুম করো একটু, জুম 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 বড় বড় একটু। গ্রিন আইস মাদি পায়রা, এই সরি এটা নরের লকটা আছে, আমি ভুলে গেছি। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো চলুন নেক্সট পায়রা দেখাচ্ছি আমাদেরকে। আচ্ছা ভিউয়ার্স দেখুন, এই একটি পায়রা দেখুন, ফুল অফ কোয়ালিটি, খুব সুন্দর পায়রার চোখটা। তো আপনাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করছি, চোখটা ক্লিয়ার আসছে কি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কারণ আমি রোদের মধ্যে আছি, তো প্রচন্ড রোদের চাপ চলছে। মুন্ডি সাদা, জিরিয়া, তার একদিকে চোখ, সে নর পায়রা, এসব বিউটি, পুরো মুন্ডি সাদা। ঠিক আছে, তো চলুন আর কয়েকটা পায়রা দেখিয়ে দেবো, দেখিয়ে ভিডিওটা স্টপ করো আমি, কারণ অনেক লং হয়ে গেছে। আচ্ছা ভিউয়ার্স দেখুন, আর একটি নর ফুলশিরা। নরের ঠোঁটটা নোট করুন বন্ধুরা, এত মোটা ঠোঁট, প্রচন্ড মোটা ঠোঁট নর পায়রাটা, খুব ভালো লাগছে পায়রাটা। সে পায়রা ফুলশিরা, বডিটা খুব সুন্দর। চলুন তো নেক্সট পায়রা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো ভিউয়ার্স দেখুন, এটা একটা ফিমেল, চটিয়াল ফিমেল, এটা চটিয়াল ফিমেল, রিংটা পুরো ক্লিয়ার একদম, মাদি পায়রা, চটিয়াল। জুম করো, চটিয়াল পায়রা। ঠিক আছে, চলুন আমি বেশি দেখাতে পারছি না, লং ইয়ে হয়ে আছে, পর খোলাই আছে, এরপর নেক্সট পায়রা দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স দেখুন, একটি কালাঙ্কা পায়রা, খুব সুন্দর পায়রা, হেডলাইন যেমন, ঠোঁটের লেভেল, এটা হচ্ছে মাদি পায়রা। দেখুন মাদি পায়রার লুকিং দেখুন, খুব সুন্দর লুক। এসছে আর একটি চোখ। তো চলুন পায়রাগুলো স্টপ করবো, ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেছে, সে এতটুকুই। তো জায়গাটা বাড়ির বাচ্চা, এর ধাড়ি সব কালাঙ্কা বাচ্চাই হয়। তো ভিউয়ার্স দেখুন, এই একটি পায়রার চোখ দেখুন, মাদি পায়রা এগুলো, খুব সুন্দর পায়রা, চোখের কোয়ালিটি একদম A1 কোয়ালিটি, এবং হেডলাইন খুব সুন্দর। মাদি পায়রা সাদা,
তার একদিকে চোখ। মাদি। তো চলুন বন্ধুরা, এরপরে আর একটা পায়রা দেখি। তাতে ভিউয়ার্স দেখুন, এই ধাড়ির বাচ্চা তো দাদার কাছে উঠছে, মানে প্রচন্ড রেজাল্টও করে, ভালো পায়রা ওড়ে। তো ভালো করে আবার বন্ধুরা নোট করুন চোখটাকে, জুম করুন চোখটা। তো চোখটা বন্ধুরা একবার ভালো করে দেখুন, যেমন হেড শেপ, চোখের কোয়ালিটিটা দেখুন। চোখের কোয়ালিটি, মাদির চোঁচ খুব বড়, খুব বড় সুন্দর জিরিয়া পায়রা। আচ্ছা, তো চলুন এখানে। হ্যাঁ তো ভিউয়ার্স, তো ভিডিওটা স্টপ করার আগে আমি চেষ্টা করছি আপনাকে পায়রাগুলো দেখিয়ে দেওয়ার, কিন্তু তারা প্রচন্ড উপরে উঠে গেছে, আমি তো দেখাতেই পারবো না, আপনি নিজেই খুঁজে পাচ্ছেন না, ঠিক আছে? তো চলুন আর বেশি কথা বাড়াবো না, দেখছেন এখানে আছে বিল্ডিং, আর কিছু নয়। তো ভিডিওটা স্টপ করব, এখানে মসজিদ আছে, পুরো এরিয়াটা দেখুন, এতটা সুন্দর লাগছে যে কি বলবো, যে আমি আজ এখানে আসতে পেরেছি কলকাতা। দেখুন পুরো টোটালি এরিয়াটা দেখুন, ঠিক আছে? তো অজয় দা, তো আপনার কাছে তো কিছু কথা রয়েছে, কোনো ভিউয়ার্স যদি বলে যে দাদার নাম্বারটা দেওয়া যাবে, তাহলে কি তাদেরকে নাম্বার দেবো না? হ্যাঁ, আমার নাম্বারটা দিতে পারো, অসুবিধা নেই। নাম্বারটা দিতে পারি তো? ঠিক আছে, তো কোনো ভিউয়ার যদি শখ করার ইচ্ছা থাকে, অবশ্যই অজয়দার সাথে আসতে পারেন, যোগাযোগ করতে পারেন, শখের জন্য দেখে যাবেন। পায়রা খুব সুন্দর কোয়ালিটি আছে। আমি তো চাইছি কি লোকগুলো আসুক, পায়রা নিতে হবে না, আসুক, আর যা যা আমাকে ফোন করবে। আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি, আমি এখন ভিডিওতে দেখাতে পারলাম না, আমার কাছে এই যে, এই পায়রাগুলো এসছে সামনে নিচে। ঠিক আছে, আমি যে টালের ওষুধ বলে দেবো, কেউ বলতে পারবে না। 1000% পায়রা ঠিক হবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো চলুন এখানে স্টপ Thank you. করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বেস্ট অফ লাক।